the Mughal period. We consider it as a part of the medieval period. So Mughals के time में, especially during the time of Akbar and Jahangir, industry flourished a lot because they were strong rulers. They wanted industrialization to happen. Definitely, it was not at a very large scale. Okay, so what happened? So during the time of Akbar and Jahangir, the industries flourished a lot because they took care about the industrialization because they knew because there were strong rulers and they supported industrialization. Definitely, industrialization then was not at that large scale as it is today. आज की जितना industrialization नहीं था, but earlier times during the time of Akbar and Jahangir, the things like spices, clothes, indigo, they were exported to the European countries. You all must have heard about Vasco da Gama. He came to India. He was a Portuguese person. He came to India. He took black pepper from here and sold it at very high cost in his own country and earned a lot of profit. And this is how the export of spices, clothes, and indigo started. यहाँ से इन सब चीजों का export start हो गया to the European country. Apart from that, there is a cloth named muslin. It is a very soft cloth. ये ढाका में पाया जाता है, which is the capital of Bangladesh. It was also exported to the another countries and it was also world renowned. Everybody around the world knew about the muslin. Then a number of industrial centers started around the country and these industries, जो भी industries लगाई गई थी, उनका main purpose था export goods को create करना, export goods बनाना. And normally जो industries थी, they were in the urban areas. Urban areas में होती थी, जो rural area से काफी दूर होते थे. Then जो इंडस्ट्रीज मुगल्स के टाइम पे थी, वो गिल्ड के कंट्रोल में होती थी. Means it was the owner of the company was not a single person. It was owned by a group. And similarly, जो प्राइमरी एम होता था, जो इंडस्ट्रीज टाउन में लोकेटेड होते थे, कि वो फाइन क्वालिटी, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाए ताकि उनको एक्सपोर्ट किया जा सके दूसरी कंट्री में. दिस वाज द मेन एम ऑफ द people who were there in the industries. So this was how the medieval period was. The medieval period में industrialization बस था कि थोड़ा बहुत सामान हमारा था जो बहुत अच्छा था, which was very famous, which was very good quality, वो हम एक्सपोर्ट करते थे throughout the world. हमारा कुछ ऐसा बनाने का बिजनेस नहीं था कि we made some good things which were famous. So because what happened after that, Indian industry started declining after the Mughals, like especially after Akbar and Jahangir. You see that Shah Jahan, Aurangzeb, and the later Mughals, Bahadur Shah Zafar and other later Mughals came. They were very weak rulers. They were in the sense that they were unable to control the Britishers. सबको पता है कि ब्रिटिशर्स यहाँ पे they came as traders, वो ट्रेड करने आए थे, but slowly and gradually उन्होंने यहाँ के रूलर से काफी सारे राइट्स ले लिए थे कि हम यहाँ पे खेती कर सकते हैं, हम यहाँ पे इंडस्ट्रीज लगा सकते हैं, ऐसी टाइप की चीजें. दे हैड स्टार्टेड सेटिंग अप दीज थिंग्स एंड जो लेटर मुगल्स थे वो उनको संभाल नहीं पाए ब्रिटिशर्स को. तो सो they started taking over their country. They started exploiting every resource of India and उनका जो मन में आता था वो उस तरीके से करते थे. अपनी इंडस्ट्रीज लगाना तो लगा लिया, मन क्या रॉ मटेरियल उठा ले गए. So this was how the things started going on during the later Mughals. So the main reason for the decline of Indian industry, first of all, is mechanization in England. We all know कि जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया उसके साथ बहुत सारी मशीनरी आई इंग्लैंड. तो मशीन आने से क्या हुआ, ऑब्वियसली मैकेनाइजेशन वुड लीड टू लार्ज स्केल प्रोडक्शन. बहुत सारा प्रोडक्शन होगा. सो अगर कोई कंट्री बहुत ज्यादा प्रोड्यूस कर रही है तो ऑब्वियसली उसको सेल करने के लिए उसको मार्केट चाहिए. मार्केट कौन था? इट वाज इंडिया. दे टुक द रॉ मटेरियल फ्रॉम हियर, वहां से प्रोडक्शन करके उसको ला करके इंडिया में डंप, इंडियंस खरीदेंगे इसको. सो दिस वाज हाउ इट स्टार्टेड. इंडियन इंडस्ट्री जो थी डिक्लाइन होने लगी. क्यों डिक्लाइन होने लगी? क्योंकि जो मशीन गुड्स होते थे वो सस्ते होते थे, स्टैंडर्ड क्वालिटी के होते थे, कि इट वाज a better quality than the handmade goods, and they were also available in bulk. You can purchase them as much as you want. जितने चाहिए उतना आप खरीद सकते थे.
So obviously what happened, जो Indian workers थे जो दिन में थोड़ा ही चीजें बना पाते थे, they went out of work, they were thrown out of their work, वो कुछ कर ही नहीं सकते थे, obviously because they started running into losses. अगर आप कुछ चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसको खरीद नहीं रहा है, तो obviously there is no need to produce that good. So the Indian workers, they were thrown out of work from there. Then there was also a competition between the machine-made foreign product and the handmade Indian goods. जो machine-made foreign product था और जो Indian goods थे, उनके में competition था, and obviously कि जो Indian goods थे, वो obviously उनको हारना था, because जो ब्रिटिशर्स थे वो machine-made goods बना करके ला रहे थे. एंड जो स्किल्ड इंडियन क्राफ्ट्समैन थे who were thrown out of work, उनके पास अब कोई ऑप्शन नहीं था rather than to join the foreign companies. जो फॉरेन कंपनी जो छोटी छोटी कंपनीज यहाँ पे कुछ चला रहे थे, उनको उन लोगों ने ज्वाइन कर लिया क्योंकि उनका अपना बिजनेस नहीं चल रहा था. So this was how the things in the medieval India operated. I hope it's clear to everyone. The next is impact of industrial revolution. Means industrial revolution आया तो we all know what impact it had on the another countries. इंग्लैंड में क्या इफेक्ट पड़ा, यूरोप में क्या पड़ा, ये सब चीजें हम जानते हैं, बट इंडिया पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा. Definitely the first impact that here was that during the time when the Britishers came here, they were only traders, but slowly उन लोगों ने सारे regions इंडिया के इकट्ठा कर लिए अपने अंदर, सब चीज उनके अंडर में आने लगी और स्लोली यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ इंडिया में. फर्स्ट ऑफ ऑल 1960 के बीच में जूट मिल्स बनाए गए इंडिया में. जूट मिल्स near Bengal and Bangladesh were the regions where these type of jute mills were formed, because jutes, they are mainly found in those areas of the country. And apart from that, railway system start हुआ, जो mining centers जो बिहार and Calcutta थे उनके बीच में चलता था. You all must be knowing कि झारखंड is famous for mining, वहाँ पे बहुत सारे minerals वगैरह available हैं. So Jharkhand railway was a part of Bihar. So this is how the railway also came into being, which ran from Bihar to Calcutta. Then next was the foreign Britishers. उन्होंने क्या करा? They set up textile mills in Ahmedabad and Bombay. Bombay और अहमदाबाद में उन्होंने textile mills set up कर दिए. जो कानपुर तक वहाँ पे woolen और leather factory establish हो गई. थोड़े छोटे मोटे इंडस्ट्रीज ऐसे स्टार्ट हुए, एंड जो ब्रिटिशर्स थे they started making a lot of profit from here. Profit कैसे बनाने लगे? Because they started taking raw materials, जो उनकी फैक्ट्रीज हैं, उन्होंने बहुत फैक्ट्रीज नहीं लगाई, पर जो 2-4 फैक्ट्रीज लगाई, what happened? They took the raw material from India. जो उन्होंने अगर कोई कपड़े का फैक्ट्री लगाया तो for the color they needed indigo. The Indian farmers were the one who produced indigo for them. इंडिगो प्रोड्यूस करने वाले इंडियन फार्मर्स थे, जो रॉ मटेरियल्स दे रहे हैं वो सारे इंडियंस थे, जो उनकी कंपनी में लेबरर्स का काम कर रहे हैं वो भी इंडियंस, एंड जो प्रॉफिट उसका जो भी वो बना रहे थे, दे यूज्ड टू टेक ऑल द प्रॉफिट ऑल द वे टू इंग्लैंड. सारा प्रॉफिट इंग्लैंड जा रहा था, इंडिया वर नॉट गेटिंग एनीथिंग. सो ब्रिटिशर्स, दे वर मेकिंग प्रॉफिट एट द एक्सपेंस ऑफ द इंडियंस. इंडियंस की कीमत पे वो प्रॉफिट बना रहे थे. दिस वाज हाउ द थिंग्स वर हैपनिंग ड्यूरिंग दैट पीरियड. देन अपार्ट फ्रॉम दैट, बहुत इंडस्ट्रीज तो नहीं सेटअप करी थी, तो यहाँ से रॉ मटेरियल अपने कंट्री भी ले जाते थे और वहां से फिनिश प्रोडक्ट्स लाकर के यहाँ पे हाई प्राइसेस में बेचते थे. सो फर्स्ट, और वो यहाँ की जो भी डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, किसी तरीके की इंडिया के डेवलपमेंट पर उनका कोई ध्यान नहीं था कि इंडिया को डेवलप भी करना है, कि यहाँ पे भी इंडस्ट्री सेटअप कर दे फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल एटलीस्ट. बट दे डिड नथिंग. द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया और द डेवलपमेंट ऑफ द लोकल इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया वाज नन ऑफ देयर. उनका इंटरेस्ट कभी नहीं था, उनका एम कभी नहीं था कि इंडिया में कोई भी डेवलपमेंट हो. जो भी डेवलपमेंट किया, इट वाज फॉर देयर ओन सेक. उन्होंने रेलवेज बनाए, सिर्फ अपने लिए बनाया, कि रेलवे अपने लिए बनाए कि वो जो भी प्रोडक्ट्स थे एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते थे. माइनिंग हो रहा था, उन्हीं के लिए हो रहा था. सो दिस वाज हाउ द थिंग्स वर हैपनिंग. अपने फायदे के लिए उन्होंने जो भी डेवलपमेंट करा था वो किया था. देन सो फर्स्ट टाइम दैट there was an Indian named Jamshedji Tata in 1911. He set up the first steel mill in Jamshedpur. जमशेदपुर में उन्होंने पहला अपना स्टील मिल बनाया और उसको जो है इंडियन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहा जाता था, because this was the first man who was able to set up a industry on his own. उन्होंने पहला इंडस्ट्री इंडिया में ऐसा लगा जो किसी इंडियन ने बनाया था. So this was the industrialization during the medieval period. Medieval period में इस टाइप का इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ.
I hope it's clear to everybody. We'll move next to the role of government in the industrial policy. हमें पता है कि जो जब obviously अब इतना पढ़ने के बाद इतना तो पता चल गया कि जब हम इंडिपेंडेंट हुए, our condition was not that good. Obviously हमारे पास बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं थे, सब छोटे-छोटे इंडस्ट्रीज थे. Normally people were engaged in agricultural activities. So this was how the things were going on. जब हम इंडिपेंडेंट हुए 1947 में, the first industrial policy was made in the year 1948. And from there, industrial policy are being made. We'll study about them later. But here, before we move on, we should know about the role of government in industrial policy. Better just mute yourself. Avnish. Role of the government in role of government industrial policy की जो industrial policy है उसका क्या रोल है, पहले पता होना चाहिए. सब जानने से पहले industrial policy होता क्या है. तो industrial policy it is a statement जो हमें ये बताता है कि गवर्नमेंट का क्या रोल होगा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में, पब्लिक प्राइवेट सेक्टर का क्या रोल होगा इंडस्ट्रियलाइजेशन में, जो रोल है स्मॉल और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज का इसके ऊपर ज्यादा फोकस रहेगा, ये बताता है. एंड जो फॉरेन कैपिटल है उसका क्या रोल होगा, ये सब चीजें जो बताते हैं, that is called as industrial policy. Industrial policy is a statement which defines the role of the government in industrial development, the role of public and private sector in industrialization of the country, the relative role of the large and small industries, the role of foreign capital, etc. ये industrial policy होती है. Then हमें ये पता है कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो पहले गवर्नमेंट ने जो भी इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई है उसमें इंडियन इंडस्ट्रीज को काफी प्रोटेक्ट करा, उनको प्रमोट करने की कोशिश करता है, क्योंकि जो हमारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जब हम इंडिपेंडेंट होते वो इतने केपेबल नहीं थे कि जो बाहर के लोग हैं उनसे फाइट कर पाए. जो फॉरेन कंपनीज अगर शुरुआत से अलाउ करते थे कि फॉरेन कंपनीज इंडिया आ जाए, तो इट वाज वेरी ऑब्वियस कि जितने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थी वो क्रश हो जाती थी बिकॉज दे वर नॉट केपेबल टू फाइट विद द फॉरेनर्स. सो So what happened? Earlier, the Indian government it protected it, and the development it also tried to speed up the process. जो भी industrialization का process था, उसको speed भी करना था. इंडिया को दोनों काम करने थे. Small scale industries को बचाना भी था, और जो industrialization का process था, उसको speed up भी करना था. So जो गवर्नमेंट की इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी वो नॉर्मली प्रमोट और डेवलप करने के लिए चार चीजें करती है. फर्स्ट वाज द चीप लॉन्ग टर्म फाइनेंस. लॉन्ग टर्म फाइनेंस मींस कि कोई भी पर्सन अगर कोई इंडस्ट्री लगाना चाहता है अपना, तो ही इज गिवन अ लॉन्ग टर्म लोन. मींस वो कोई लोन ले सकता है किसी बैंक से या दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो इन पर्पस के लिए बनाए गए हैं उनसे लोन ले सकता है. ही कैन डू हिज वर्क एंड रीपे द लोन व्हेन ही स्टार्ट्स अर्निंग समथिंग. देन अगर कोई अपना बिजनेस एक्सपैंड करना चाहता है तो भी लोन ले सकता है. इट इज अ लॉन्ग टर्म फाइनेंस. द नेक्स्ट इज कंसेशन ऑन एक्साइज ड्यूटी एंड अदर टैक्सेस. जो भी यहाँ पे लोग थे, कंसेशन जो भी इंडस्ट्रीज लगती है उन पे एक्साइज ड्यूटी लगता है और कई तरीके के टैक्सेस लगाए जाते हैं. सो गवर्नमेंट ने इन टैक्सेस को रिलीज कर दिया, इनको थोड़ा कम कर दिया सो दैट पीपल कैन स्टार्ट सेटिंग अप इंडस्ट्रीज. देन जो एंटरप्रेन्योर्स थे उनकी ट्रेनिंग और डेवलपमेंट कराइए. मतलब स्मॉल स्केल अगर कोई छोटा इंडस्ट्री का ओनर है उसको अगर प्रॉपर ट्रेनिंग प्रॉपर चीजें दी जाए तो ऑब्वियसली ही कैन बिकम अ बिग एंटरप्रेन्योर, को बिग बिजनेसमैन बन सकता है. सो प्रॉपर ट्रेनिंग और डेवलपमेंट दिया जाता है. नेक्स्ट इज प्रमोशन ऑफ स्मॉल एंटरप्राइजेस. जो छोटे एंटरप्राइजेस हैं उनके प्रमोशन पे भी गवर्नमेंट ध्यान देती है. सो दिस वाज द गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल पॉलिसी. इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं? फर्स्ट इज रैपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो पॉलिसीज है उसका हमेशा से एम रहा है कि जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है उसको बढ़ाया जाए. फेवरेबल इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट देके मींस प्रॉपर क्लाइमेट हो कि टैक्सेस कम लगे उनके ऊपर एक्स्ट्रा लाइसेंसिंग पॉलिसी न लगाई जाए कि हर बात के लिए आपको लाइसेंस लेना है. सो थ्रू दीज वेज द गवर्नमेंट ट्राइज टू इम्प्रूव द industrial development. The next is prevention of concentration of economic power. All those who are present here, just write your roll number and send me so that I can know in the chat here itself. Then next aim is prevention of concentration of economic power. Means
here the government, it made certain rules and regulations so that it made certain rules and regulations which was certain rules and regulation so that the public and the private sector they can work together, दोनों collaboration में काम करें. ऐसा नहीं हो कि सिर्फ प्राइवेट हैंड्स में कोई पावर चली जाए और वो सबको रूल करने लगे. ऑब्वियसली अगर किसी प्राइवेट हैंड में सारा पावर चला जाएगा तो वो मनमानी करने लगेगा. he'll take whatever money he needs for giving the things or the services. Then balanced industrial structure means बैलेंस इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर मींस कि जो भी हमारा जो प्रिवेलिंग इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर है वो लूप साइडेड नहीं होना चाहिए. मींस ऐसा ना हो कि सिर्फ हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पे ध्यान देते रह जाएं और हमारा लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज या लार्ज जो बिजनेस है वो सब छूट जाए. सो गवर्नमेंट इट ट्राइज टू मेंटेन अ बैलेंस. The industrial policy is designed to correct the prevailing loop-sided industrial structure by laying emphasis on the heavy industries and development of the capital sector. The industrial policy seeks to bring a balance in the industrial structure. Balanced regional growth means industrial policy here it tries to aim at reducing the industrial imbalances. मतलब ऐसा नहीं हो कि कोई बैकवर्ड रीजन है तो वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो नहीं रहा है. बिकॉज अगर किसी कंट्री में या किसी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में जहां पे भी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा होता है वहां पे डेवलपमेंट के चांसेस ज्यादा है. यू विल फाइंड कि wherever there are industries there are good roads, there is proper electricity supply. These are the things which are considered as a sign of development. You will find it. So balanced regional growth hona chahiye. For that government should set up industry in the backward areas also so that it can be improved. Next is protection and promotion of small industries. Large scale industries के अलावा small industries को ध्यान देना होगा. Like the government it encourage the small scale industries कैसे? By reserving 836 items for the small units. उसमें जो है जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तो उसमें जो है 836 items रिजर्व कर दिए थे कि इस पे सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ही काम करेगा, इस पे कोई बिग एंटरप्राइज काम नहीं करेगा. And apart from that, government it also provided cheaper loans, उनको cheaper finance देता था, industrial support, marketing assistance, जो भी उनको हेल्प चाहिए government used to give them. The next is industrial policy resolution of 1940. This was how, before we come here of industrial policy, I hope it's clear to everyone that what an industrial policy is and how the industrial policy promotes the development of a country and what are the objectives of the industrial policy. Then industrial policy resolution of 1948. We'll start from here. The government of India announced its first industrial policy. We all know that India 1947 में independent हुआ and on 6th April 1948 only it announced its first industrial policy. जब हम independent हुए तो condition was something else. Everybody was not that rich. In fact, most of the India was poor. Poor means they survived on the basic necessity of the days. So the policy laid stress on the role of the state in the development of the industry. Obviously, जब लोग जहाँ के लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होंगे, जब हम इंडिपेंडेंट हुए तो हमारे लिटरेसी रेट भी बहुत कम था, ना हमारे में इतनी कैपेसिटी थी, ना इतने पैसे थे, ना गवर्नमेंट के पास, ना हमारे पास इंडिविजुअल किसी के पास ना इतने पैसे थे. बहुत हालत खराब थी उस समय. सो गवर्नमेंट ऑब्वियसली हर चीज गवर्नमेंट ने अपने हाथ में लिया कि हम इसको सही करेंगे, किसी प्राइवेट पर्सन को नहीं देंगे. सो गवर्नमेंट डिवाइडेड द इंडस्ट्रीज इनटू 4 ब्रॉड कैटेगरी. इंडस्ट्रियल एक्टिविटी को 4 पार्ट में बांट दिया गया ऑन द बेसिस ऑफ द ओनरशिप की उनकी ओनरशिप, उनके डेवलपमेंट का काम कौन देखेगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द आइटम्स अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल. सेंट्रल गवर्नमेंट. सो जो 4 पार्ट में डिवाइड हुआ वो कैसे हुआ था? पहला जो आइटम सेंट्रल गवर्नमेंट रखेगी, दूसरा जो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आएगा, थर्ड फिर से सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा लेकिन वो आइटम्स ऑफ बेसिक नेसेसिटी होंगे जो सबको चाहिए. देन फोर्थ इज द प्राइवेट हैंड्स. So this was divided into this 4 types. First is the items under the central government control. Item जो central government ने अपने पास रखा. Central government means जो Indian government, ठीक है. तो उनके पास they kept arms and ammunition, atomic energy, railway, transportation. These were the things that central government kept it itself.
आज भी अगर हम देखेंगे तो आर्म्स एंड एम्यूनिशन का मैन्युफैक्चर, एटॉमिक एनर्जी का और रेलवेज का, एटलीस्ट आर्म्स एंड एम्यूनिशन चलो फिर भी प्राइवेट हो गए हैं, बट कंट्रोल ये एटॉमिक एनर्जी एंड रेलवेज इवन टुडे दे आर इन द हैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट. So that time central government took all these four things: what arms and ammunition, production of atomic energy, management of railways, transportation, etc. These were in the hands of the central government. Central government उसको अपने पास. The next is the items under the state government control. State government ने अपने पास क्या क्या चीजें रखी, like iron and steel, aircraft manufacture, shipbuilding, manufacture of telephones, telegraph, wireless apparatus, mineral oil, etc. They all came under the state government. State government में ये छोटी छोटी चीजें उन्होंने दे दी कि ये state government के head में रहेगा. Then items of basic importance, they were also planned and regulated by the central government. जो items of basic importance है, basic importance means like salt, sugar, pharmaceuticals, है ना? These are the things जो सबको चाहिए, सबको salt, sugar, दवा, these are the basic things which everybody needs. So what happened? The government of India, it took these things under itself. उसने items of basic importance को भी अपने साथ रखा, अपने पास रख लिया, like salt, automobiles, tractors, electric engineering, other heavy machinery, machine tools, heavy chemicals, fertilizers, pharmaceuticals, power, cotton, woolen textiles, cement, sugar, paper, newsprint, etc. सब government hands में रहा, कुछ भी private को इस सब में से नहीं दिया. So this was how it was divided into three parts, and fourth is the private sectors. The rest of the industrial field came under the private sector. So उस समय क्या था, private sector के लिए बहुत कम scope था कुछ भी करने के लिए, because ज़्यादातर चीजें government ने अपने पास रखी थी और उनसे जो बचा that was left to the private sector. And here the policy emphasized on securing a continuous increase in production and its equitable distribution. Industrial policy जो 1948 का था, उसमें इस बात का ध्यान रखा गया कि कंटिन्यूअस प्रोडक्शन जो है हमेशा बढ़ता रहे एंड जो रिसोर्सेज है या जो भी प्रोडक्शन हो रहा है वो इक्वली डिवाइड हो सके, कोई छूटे ना. देन इंपॉर्टेंस हियर वाज गिवन टू स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज. उस समय ज्यादा इंपॉर्टेंस स्मॉल स्केल और कॉटेज इंडस्ट्रीज को दिया गया था क्योंकि हमारे ज्यादातर लोग जो है इन्हीं इंडस्ट्रीज में एम्प्लॉयड थे, सब छोटे छोटे काम कर रहे थे कोई या फिर एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड थे. Even till 5 or 10 years back, we'll find that in agriculture was the main industry in which most of the people were employed. So this was the scenario of 1948, and this was the industrial policy of 1948. I hope it's clear to everyone. Anyone needs to ask something? Class, please speak up. Okay. Let's move on. Medieval industrialization. So we'll start from the industrial policy of 1956. We studied about the 1948. 56 पे आते आते थोड़ा situation improve हो गया था. And what happened? In December 1954, Parliament adopted a socialist pattern of society as a goal of economic policy that called for the state and the public sector to increase its sphere of activity in the industrial sector and thus prevent the concentration of economic power in the private hands. 1954 में क्या हुआ, गवर्नमेंट ने सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी बनाने का सोचा कि हमारी जो इकोनॉमी होगी वो सोशलिस्ट पैटर्न पे चलेगी. मींस किसी एक इंडिविजुअल के हाथ में सारी पावर नहीं देनी है कि एक कोई प्राइवेट ओनर होगा उसके पास सारी पावर ना जाए. इसके लिए गवर्नमेंट ने सोशलिस्ट पैटर्न बनाया और इसके लिए ही उसका गोल ये हो गया कि इंडस्ट्रियलाइजेशन को वो बढ़ाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें लोग बढ़ सके, ज्यादा लोग आ सके इसमें, ताकि जो इकोनॉमिक पावर है वो एक लोग ना जाए. और इसी को ध्यान में रखते हुए अप्रैल 1956 में हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1956 अनाउंस हुई थी. अप्रैल 1956. देन पॉलिसी में क्या हुआ था, सबसे पहले जो इंडस्ट्रीज थी उनको शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल सी इंडस्ट्रीज में बांट दिया गया है. किस बेसिस पे बांटा गया? ऑन द डिग्री ऑफ स्टेट ओनरशिप एंड पार्टिसिपेशन इन डेवलपमेंट.
कि उनका ओनरशिप जो है किसके पास रहेगा और उनका जो है डेवलपमेंट में पार्टिसिपेशन कितना होगा, किस तरीके से वो पार्टिसिपेट करेंगे। सो फर्स्ट शेड्यूल दैट इज शेड्यूल ए इंडस्ट्रीज में क्या था, इसमें 17 इंडस्ट्रीज को रखा गया और इनका फ्यूचर डेवलपमेंट जो है वो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। इस लिस्ट में क्या क्या चीजें थी, आर्म्स एंड एम्यूनिशन आ गई, एयरक्राफ्ट बिल्डिंग, एयर ट्रांसपोर्ट, शिप बिल्डिंग, आयरन एंड स्टील, कोल, लिग्नाइट, हेवी electricals, etc. These were the things that were included in the Schedule A. These are the 3 points. First is Schedule A में 17 industries थी, इनका जो डेवलपमेंट था that was the exclusive responsibility of the government. गवर्नमेंट उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा उनकी डेवलपमेंट का, और ये सारे इंडस्ट्रीज थे जो उसमें इंक्लूड किए गए, आर्म्स एंड एम्यूनिशन, एयरक्राफ्ट बिल्डिंग, एयर ट्रांसपोर्ट, शिप बिल्डिंग, आयरन स्टील, कोल, लिग्नाइट, हेवी इलेक्ट्रिकल्स। Then come the Schedule B. Schedule B में क्या था, इसमें 12 इंडस्ट्रीज रखी गई and these industries were progressively state owned. State owned मतलब जिससे पहले वाला A था that was for the central government, ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट का था, और जो शेड्यूल बी था वो हर स्टेट के पास, लाइक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन सब वाइज रखा गया था। सो दीज वर ओन्ड बाय द स्टेट, और जो है इसका डेवलपमेंट जो है वो स्टेट करेगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हियर व्हाट हैपेंड, प्राइवेट सेक्टर वो आल्सो एक्सपेक्टेड टू सप्लीमेंट द एफर्ट्स ऑफ द स्टेट इन दिस कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्रीज। जो प्राइवेट सेक्टर था वो इनको सप्लीमेंट करेगा, इनके एफर्ट्स को कैसे सप्लीमेंट करेगा, सपोज अगर कोई प्रोडक्शन है, कोई चीज, मान लो कोई गवर्नमेंट टेक्स एन इनिशिएटिव कि हम फार्मर्स को सीड्स प्रोवाइड करेंगे या फार्मर्स को हम किसी वैरायटी का कोई फर्टिलाइजर प्रोवाइड करेंगे, तो व्हाट विल दे डू, दे विल आस्क द प्राइवेट पीपल टू फाइल अप द टेंडर। वो टेंडर निकालेंगे और जो प्राइवेट कंपनीज है उनसे बोलेंगे कि प्लीज फिल दिस, दे विल बी फिलिंग, एंड दिस इज हाउ जो प्राइवेट सेक्टर है वो एफर्ट्स को, उनके एफर्ट्स को सप्लीमेंट करेगा, बिकॉज दे विल बी द वंस हु आर द एक्चुअल प्रोवाइडर्स ऑफ गुड्स, ठीक है। सो this is how the Schedule B operates. Then comes the Schedule B. All the remaining industries they fell in Schedule C. जो भी इंडस्ट्रीज इनसे बच जाती थी वो शेड्यूल सी में थी। द फ्यूचर डेवलपमेंट, यहाँ तक आते आते हमारे पास काफी सारी चीजें, प्राइवेट हैंड से बहुत सारी चीजें आ गई। Then the future development of these industries were left to the initiative of the private sector. The state, however, was to provide necessary assistance to provide private sector for development of industries. जो शेड्यूल सी में इंडस्ट्रीज थी वो प्राइवेट हैंड्स में थी, बट यहाँ पे ये कहा गया कि जो स्टेट है वो उनकी हेल्प करेगा। कैसे हेल्प करेगा, ऑब्वियसली स्टेट कोई और हेल्प नहीं कर सकता, वो सिर्फ मनी प्रोवाइड कर सकता है, उनको फाइनेंशियल हेल्प दे सकता है। सो यहाँ पे शेड्यूल सी कंपनीज में प्राइवेट लोग रखेंगे, प्राइवेट लोग काम करेंगे और सिर्फ जो स्टेट है वो उनको असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी। दिस वाज हाउ शेड्यूल ए एंड बी हैपेंड। इट्स क्लियर टिल नाउ? Then the features of industrial policy of 1956. Role of small scale sector. वो तो basic चीजें थी, Schedule A, Schedule B and Schedule C. Apart from that, there were certain other things that were there. First is the role of a small scale sector. Here what happened? The government will make effort to promote the cottage and small industries. In order to achieve this, 128 items were reserved for exclusive production in the small scale sector, and this list would be expanded by the government. What happened? जो small scale sectors थे उनको promote करने के लिए गवर्नमेंट ने कॉटेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को काफी बढ़ावा दिया, और उसके लिए उन्होंने 128 आइटम्स को रिजर्व कर दिया गवर्नमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए। जो कॉटेज इंडस्ट्रीज थी और जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी वो लोग उसका प्रोडक्शन करें। Then next is balanced regional development. The industry backward regions will be given priority in establishing industries. It emphasized the provision of industrial facilities like power and transport, especially to those areas which lagged behind in matters of employment and industrial development. More incentives were given to the industries which were established in these regions. What happened? जो industrial backwardness थी उसको improve करने के लिए what did it do? उसको दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने जो है इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी शुरू कर दी, जैसे कि पावर और ट्रांसपोर्ट दिया उस एरियाज में जो पीछे छूटे हुए थे, जहाँ पे, और ताकि वहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप की जा सके, वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके, वहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो सके। So for that government did these things,
एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड जो भी इंडस्ट्रीज जो इन बैकवर्ड एरियाज में इंडस्ट्रीज लगा रहा था उन लोगों को काफी इंसेंटिव दे रहे थे, उनसे टैक्सेस कम लेना, उनसे उनको मतलब काफी हद तक उनको चीजों में रिलैक्सेशन दे देना. दिस वाज हाउ द स्टेट वाज ट्राइंग टू improve the industrialization in India. Then the management of public enterprise. Here the policy was laid down for proper management of public enterprise. Public enterprise कौन होते हैं? जो भी इंडस्ट्रीज जो स्टेट के अंडर में आते हैं या गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ पब्लिक एंटरप्राइज. तो पहले क्या था कि जो पब्लिक एंटरप्राइज होते थे वो काम में बहुत धीरे धीरे काम करते थे, तो गवर्नमेंट ट्राइड कि उसको इम्प्रूव करे ताकि लोग जल्दी डिसीजन ले, जल्दी फैसले करें, काम आगे बढ़े. तो इट सजेस्टेड मेजर्स लाइक डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी, स्पीडी डिसीजन मेकिंग एंड फ्रीडम ऑफ एक्शन टू द एग्जीक्यूटिव फॉर मेंटेनिंग द एफिशिएंसी ऑफ द स्टेट इंडस्ट्रियल यूनिट. गवर्नमेंट ने क्या करा, उन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी मींस अथॉरिटी सिर्फ एक लोग के पास नहीं रहेगी, बहुत सारे लोगों के पास अथॉरिटी रखी जाएगी ताकि डिसीजंस इजीली लिए जा सके. देन नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल. The policy provided for the development of managerial and technological personnel for rapid industrialization in the country. Facilities like training for the training were provided at various levels. What happened? Personal improvement के लिए मतलब जो लोग employed है उनके development के लिए government started giving certain trainings to them so that they can improve their skill and thus improve industrialization in the country. Then industrial peace था. The policy recommended provision for good working conditions for workers. Joint consultation and association of laborers with the management are the steps to achieve industrial harmony. Government ने ये कहा ऐसे प्रोविजंस बनाए गए कि जो वर्कर्स हैं उनको प्रॉपर वर्किंग कंडीशन दिया जाए. जॉइंट कंसल्टेशन मींस कोई भी अगर फैसला होता है तो वर्कर्स शुड आल्सो बी आस्क्ड देयर व्यू, वो क्या चाहते हैं. लेबर्स का एसोसिएशन, दीज आर द थिंग्स दैट विल बी डीलिंग विद इन द नेक्स्ट जॉइंट कंसल्टेशन एसोसिएशन ऑफ लेबर्स. दीज आर द थिंग्स विल बी डीलिंग इन द नेक्स्ट. ये सब क्या थे? सो गवर्नमेंट मेड these things so that industrial peace बना रहे. industrial peace कैसे बना रहेगा? अगर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई साथ में काम करेंगे, आपस में लड़ाई झगड़े नहीं करेंगे, then industrial peace can be maintained. but if अगर लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, peace maintain नहीं होगा. For maintaining this, government asked the employers to give them good working condition. Joint consultation and association of workers with the management was taken into consideration for keep maintaining the harmony in the industry. This was, in short, the industrial policy of 1956. Excuse me, ma'am. Anyone saying something? No, ma'am. Hello. Yes. मैम 19 मैम इंडिपेंडेंस के बाद ये जो मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसने पॉलिसी यूज की थी, जैसे कि कोल माइनर्स का डॉक्टर में कि मतलब कि उनके लिए कोई एक मालिक होता था, वो सेंट्रल के कंट्रोल में नहीं होती. मैम वो कौन सी इंडस्ट्री पॉलिसी थी? Sorry, I'm unable to get you. मैम एक्चुअली इंडिपेंडेंस के बाद कोल माइनिंग जो प्रोजेक्ट्स होते थे उनमें एक होता क्या था कि उनका एक ओनर होता था और उनकी एक यूनियन होती थी ओनर्स की. सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं होते थे. तो मैम ये कौन सी पॉलिसी में होगा? नहीं बेटा, जो तुम ये बातें कर रहे हो ना, दे आर समथिंग एल्स. यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं ना 1948 की पॉलिसी, तो गवर्नमेंट ने इसको ऐसे बनाया कि हम ये काम करेंगे. इफ यू सी जो गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती है, ये इट्स नॉट वेरी गुड टू से, बट यू विल फाइंड कि जो पॉलिसीज बनती है हमारे यहाँ, इट्स नॉट एग्जैक्टली हाउ इट्स इम्प्लीमेंटेड. पॉलिसीज तो बहुत सारी हमारे यहाँ बन जाती है कि ऐसा होगा ऐसा होगा. डू यू थिंक रियली इम्प्लीमेंटेड एट द ग्राउंड लेवल? इट्स नॉट एक्चुअली पॉसिबल.
Right, the same thing has happened. The thing that you were saying कि हाँ वहाँ पे government के control में नहीं रहते हैं because they have a union and other things. This is true, but it is not included in the industrial policy. Industrial policy में government ने सिर्फ ये कहा कि हम ऐसा ऐसा करेंगे सही करने के लिए चीजों को, है ना? Because उस समय हम इतने rich या इतने capable नहीं थे. Right, Arrange? Yes, ma'am. Anything else? No, ma'am. Thank you. Okay, अच्छा. Just wait for a few minutes.